पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। So the Musiala, baby. Yeah. Mercy. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਨਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਓ ਕੌਣ ਸੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨੀਅਤ ਛੋਟੀ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਕਾ ਨਾ ਖੈਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਓ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹਿਸਾਬੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਰਬ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁਲਾ ਥੱਲੋਂ ਵਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੋ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਹੋ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਆਊ, ਤੇ ਨਾ ਟਲੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਆਊ, ਫੇਰ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨੇ ਨਾਇਰਾ ਚ ਡੇਕਾ ਲਾਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वेजा को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत, पेशेंस का टेस्ट मत। riservati alcuni poteri di emergenza a cui avrebbe potuto ricorrere nei casi di crisi. Dalle esperienze costituzionali occidentali furono mutuati istituti come la Corte Suprema Federale, il sistema di governo parlamentare e il principio dell'uguaglianza giuridica dei cittadini. Fu inoltre introdotto il suffragio universale, nonostante l'alto tasso di analfabetismo presente nel paese. Nel 1950, con la promulgazione della Costituzione, si chiuse definitivamente il periodo di transizione. Il partito del Congresso si confermò il partito di maggioranza all'interno del paese, la cui leadership era stata assunta già nel 1941 da Jawaharlal Nehru, che fu il primo ministro dell'Unione Indiana dal 1947 fino alla sua morte, avvenuta nel 1964.
Per Nehru fu difficile la gestione della politica interna, dove l'intervento del governo doveva innanzitutto rompere con le tradizioni arcaiche profondamente sedimentate nel paese, prima di poter avviare un processo di modernizzazione sia sociale che economica. Pur tra le difficoltà comunque si mise su questa strada abolendo per esempio il sistema delle caste, promuovendo la parità tra i sessi e una maggiore giustizia sociale. Ebbe quindi un ruolo fondamentale nel consolidare la democrazia indiana e pur disponendo di un prestigio grandissimo che gli avrebbe consentito di instaurare una dittatura, impose scrupolosamente il rispetto delle forme parlamentari e garantì la più ampia libertà d'espressione. Dal punto di vista economico tentò di conciliare gli ideali di un socialismo gradualista con la libertà di impresa. Senza mettere in discussione la proprietà privata, attuò la nazionalizzazione dei servizi pubblici e dei settori economici strategici, quali quello siderurgico ed energetico, e a partire dal 1951 avviò una programmazione dello sviluppo articolata su piani quinquennali. Queste misure, insieme a una riforma agraria che riduceva parzialmente la proprietà terriera, dovevano servire a contrastare la drammatica povertà delle campagne e l'enorme sovraccarico demografico del paese. In politica estera, nel 1955 prese parte alla conferenza di Bandung e fu tra i promotori del movimento dei paesi non allineati. La sua scelta di non schierarsi a fianco di una delle due superpotenze e l'invito ai paesi dell'Asia e dell'Africa a fare altrettanto permisero a Nehru di avvalersi di molti aiuti sia da parte degli Stati Uniti, che attribuivano all'India una grande importanza geopolitica nell'area asiatica, sia da parte dell'Unione Sovietica. Tuttavia, i principi di cui l'Unione Indiana si era fatta portatrice a livello internazionale non sempre Nehru li praticò nella politica di vicinato con i paesi confinanti. Infatti, già a partire dal 1949 cercò di estendere i confini dell'India a nord-est, in direzione del Bhutan e dello Sikkim, e accentuò successivamente la sua influenza sul Nepal. Dopo l'occupazione cinese del Tibet nel 1950, Nehru prese posizione a favore del Dalai Lama, la massima autorità religiosa della corrente buddista tibetana, in quanto temeva la presenza cinese al confine settentrionale dell'India. Proprio la questione dei confini del Tibet occupato fu all'origine del conflitto sino-indiano che scoppiò alla fine del 1962. Alla sua morte, nel 1964, gli successe Shastri, che rimase però al governo solo 2 anni. Nel 1966 la direzione del partito del Congresso e la guida del paese furono assunte dalla figlia di Nehru, Indira Gandhi, che governò, salvo un breve intervallo alla fine degli anni 70, fino al 1984, quando rimase vittima di un attentato ad opera di militanti del gruppo terrorista Sikh, il movimento separatista radicale presente nella regione del Punjab. Indira Gandhi, pur accentuando alcuni tratti autoritari e personalistici che avevano caratterizzato anche la politica del padre, cercò comunque di modernizzare le strutture politiche del paese e di promuoverne lo sviluppo industriale. Ben più lunga e complessa fu la strada percorsa dal Pakistan all'indomani dell'indipendenza. Il paese impiegò infatti diversi anni per arrivare a dotarsi di un impianto costituzionale e la Costituzione, che faceva del Pakistan una repubblica islamica, fu prodotta solo nel 1956, ma la messa a punto di un quadro normativo definito non garantì tuttavia la stabilità del paese. Le drammatiche condizioni economiche e una classe politica corrotta e debole lasciarono spazio all'esercito, che ciclicamente, a partire dal 1958, avrebbe assunto la guida del paese. Alla difficile situazione politica si aggiungeva poi la precarietà geografica determinata dalla discontinuità del territorio pakistano. Il conflitto sempre più radicale che contrapponeva i bengalesi residenti nel Pakistan orientale al governo centrale causò un'escalation di tensioni nazionaliste e indipendentiste da parte del popolo bengalese. Nel 1971 il Pakistan orientale si ribellò definitivamente e nella guerra mossa contro il governo centrale di Islamabad ottenne l'appoggio dell'Unione Indiana di Indira Gandhi. Il conflitto si concluse con la separazione dal resto del Pakistan della regione orientale, che si costituì in stato indipendente col nome di Bangladesh.
हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट मोड्स, जहां हम बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल में जो स्टैटिक का पोर्शन पूछा जाता है उसे इन डिटेल करंट की न्यूज़ के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो स्टेट डिस्कस करेंगे वो है आसाम, जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे, कमरूपा या प्रयाग ज्योतिष। अब आपसे इसकी कैपिटल या इसकी राजधानी पूछी जाए तो वो है दिसपुर, और इसको स्टेट का दर्जा कब दिया गया, 1969 में। जब इसको स्टेट का दर्जा दिया गया तो इसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट देखने को मिलता है, और वो कौन से नंबर का था, वो था 22 नंबर का। अब आपसे पूछा जाए कि मैम ये पॉसिबल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में भी अमेंडमेंट हो सकता है, तो हाँ, उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको बिना उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किए हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल नंबर 368 में मेंशन है कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में भी संशोधन हो सकता है या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। और ये पावर किसके हाथ में होती है, ये पावर होती है पार्लियामेंट के हाथ में। अब ये तो हो गया कि इसको स्टेट का दर्जा कब दिया गया, बट अगर आपसे पूछा जाए इसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है 371B आर्टिकल में। नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी आपको ऐसी स्टेट मिलेंगी जहाँ आपको स्पेशल स्टेटस के लिए ये आर्टिकल्स देखने मिलेंगे। और अभी आपको याद होगा हाल ही में 2019 में, कब एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 31 अक्टूबर 2019 में जो JNK है उसमें से जो उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था अंडर विच आर्टिकल 370, उसको स्क्रैप किया गया है या हटाया गया है। और जो 31 अक्टूबर है उसको हम किस रूप में मनाते हैं, वो हम मनाते हैं यूनिटी डे, जो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और उसी दिन जो JNK और लद्दाख था उसे केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया था। अब आपसे पूछा जाए कि ये अपने बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है, तो ये करता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इनको मिला के हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। +1 सिक्किम मैंने इसलिए लिखा है, +1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सिक्किम भी आपको नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो सिक्किम है वो अपना बॉर्डर आसाम के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए मैंने इसे +1 सिक्किम के नाम से लिखा है। अब अरुणाचल प्रदेश क्यों न्यूज़ में, ये हम देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कहा गया है, जो खादी इंडिया है उसने, कि यहाँ पे सिल्क सेंटर डेवलप किया जाएगा, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी, उससे हम ओवरकम करेंगे और लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब मणिपुर क्यों न्यूज़ में, तो मणिपुर में आपको वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लामजुआ नेशनल पार्क देखने मिलेगा, जो किसके लिए फेमस है, डांसिंग डियर या शंघाई डियर। और यहीं पे आपको एक लेक मिलती है, लोकटक लेक, तो ये भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब आया नागालैंड। नागालैंड में अभी हाल ही में जो अशपा लॉ है उसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है या एक्सटेंड किया गया है। अशपा लॉ क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नागालैंड स्टेट डिस्कस करेंगे। अब त्रिपुरा क्यों न्यूज़ में, तो त्रिपुरा में अभी हाल ही में कहा गया है जो 1971 में हमारे शहीद हो गए थे सैनिक, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा त्रिपुरा में। किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मेघालय क्यों न्यूज़ में, तो इसकी जो कैपिटल है शिलोंग, उसको 100 नंबर की जो स्मार्ट सिटी है उसके रूप में डेवलप किया जाएगा। और अभी हाल ही में बात चल रही है जो लद्दाख है, उसमें आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने मिलते हैं, कारगिल एंड ले, उन दोनों को भी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब मिज़ोरम क्यों न्यूज़ में, तो हम देख लेते हैं। तो मिज़ोरम में अभी हाल ही में जोराम मेगा फूड पार्क जो है वो बनाया जाएगा, और जो फूड मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, तो वो इंडिया में आपको देखने मिलेगी हरसिमरत कौर बादल जी के पास, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, भटिंडा। और आपसे वर्ल्ड में पूछा जाए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा रोम, इटली में। अब सिक्किम का हम देख लेते हैं। तो सिक्किम एक ऐसा लौता स्टेट है जिसकी जो बॉर्डर्स हैं वो एक लौते इंडिया के स्टेट के साथ शेयर करता है, और वो है वेस्ट बंगाल। बाकी ये 3 जगह से किस से घिरा हुआ है, चाइना, भूटान एंड नेपाल। तो ये भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब इसके जो स्टेट एनिमल है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ का स्टेट एनिमल है वन हॉर्न राइनोज। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1 हॉर्न राइनोज हैं वो IUCN की लिस्ट में किसके अंदर आते हैं, तो जो वनरेबल होती है जो अभी मतलब इनको खतरा है कि हाँ अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो सकते हैं या ये ख़त्म हो सकते हैं, तो इनको हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा। आपसे IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड में।
जो कहाँ मिलेगा आपको, स्विट्ज़रलैंड में देखने मिलेगा। यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो कौन सी है, तो वो है वाइट विंग्ड डक। अब यहाँ के जो सीएम है वो आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट यहाँ के सीएम कौन है, तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। सीएम पूछा जाए कौन से आर्टिकल में मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो है 164। और अभी हाल ही में इन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अवार्ड होता है उनसे नवाजा गया है। और हाल ही में अभी जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम चेंज करके किनके नाम पे रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टैटिक के पार्ट में। अब आया गवर्नर, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो एट प्रेजेंट है जगदीश मुखी जी। जो गवर्नर है ये राज्यपाल है, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है 153। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये मेंशन है कि एक गवर्नर एक साथ 2 स्टेट को होल्ड कर सकता है, एक साथ 2 राज्यों में या स्टेट में एज अ गवर्नर काम कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल है 155। और इसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट देखने मिलता है, 7th नंबर का अमेंडमेंट, जो कब हुआ था, 1956। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता देती हूँ। जो महाराष्ट्र के गवर्नर या राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, कहाँ का, गोवा का। गोवा के पहले कौन गवर्नर थे, वो थे सत्यपाल मलिक जी, जो अभी मेघालय के गवर्नर के रूप में अभी काम कर रहे हैं। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ का हाई कोर्ट पूछा जाए तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, गुवाहाटी में, जो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948। और एट प्रेजेंट यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, अजय लांबा जी। और आर्टिकल जो हाई कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है 214 में। अब जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, यहाँ पे 3 और स्टेट का आपको हाई कोर्ट देखने मिलेगा। मतलब इसी के साथ इनका जो जितने भी केस आते हैं नागालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश के, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही देखे जाते हैं या वहीं पे उनकी सुनवाई होती है। और आपके अगर ये याद ना रहे तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक रखी है, तो वो है आपकी नगमा। आप से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नग से हो जाएगा नागालैंड, एम से हो जाएगा मिजोरम एंड ए से हो जाएगा आसाम। तो ये ट्रिक आप अपने माइंड में रख सकते हैं, जिससे आपको ये याद करने में आसानी होगा। अब जैसे आपको हाई कोर्ट मिलता है वैसे ही आपको इंडिया में एक लौता सुप्रीम कोर्ट देखने मिलता है, जो किस आर्टिकल में मेंशन है, 124, और जो कहाँ पे है, दिल्ली में। और एट प्रेजेंट यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हैं S.A. बोबड़े जी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, उसकी जजेस की रेशो क्या है, तो वो 33+1 है। 33 जजेस मिलेंगे और एक चीफ जस्टिस, जो मैंने अभी आपको बताया कौन है, S.A. बोबड़े जी। अब यहाँ की लोकसभा आपसे पूछी जाए उसमें कितनी सीट है, तो यहाँ पे आपको लोकसभा में 14 सीट्स मिलेंगी, और उसका हाफ कर देंगे तो उतनी ही सीट आपको राज्यसभा, मतलब 7। जो लोकसभा है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है 81 में, और राज्यसभा आता है 80 में। और ये दोनों आते हैं अंडर पार्लियामेंट या संसद, जो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो है 79 में। अब जो लोकसभा है उसके एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है, तो वो है ओम बिरला जी, जो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कोटा राजस्थान से। आपको पार्लियामेंट में 3 सेशन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, तो वो सेशन है BMW, बजट, मॉनसून, विंटर, जिनको हेड कौन करता है, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो एट प्रेजेंट कौन है, ओम बिरला जी। बट अगर आपसे पूछा जाए जो जॉइंट सेशन होता है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो आर्टिकल नंबर 108 में है। और इसे कौन बुलाता है, ये पावर किसके हाथ में है, तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन इसे हेड कौन करता है, वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो ये अलग अलग बातें हो गई। जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर, हेड कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर। बट जॉइंट सेशन अगर बुलाना है तो वो प्रेसिडेंट बुलाएंगे, लेकिन हेड कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर। तो ये भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। और राज्यसभा में आपको देखने मिलते हैं चेयरपर्सन, जो कौन होते हैं, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। तो एट प्रेजेंट कौन है, वो है वेंकैया नायडू जी। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होती है उनकी सैलरी क्या होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 0, 0, क्योंकि वो हमेशा सैलरी या पे जो होती है वो लेते हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ के डांस कौन कौन से फेमस हैं, तो वो है बिहू, भोरताल और झूमर। ये कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार पूछे भी गए हैं।
अब फेस्टिवल यहाँ कौन सा पूछा जा सकता है, तो वो है बिहू डांस फेस्टिवल, जो साल में कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ की रिवर आपसे पूछी जाए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है वो है ब्रह्मपुत्र। और रिवर्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे है एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा है वैसे। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर में लिखो ब्रह्मपुत्र या रिवर का नाम, फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो होता है मानसरोवर, जो कहाँ है, तिब्बत में, हिमालय का पार्ट है। और वहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सांगपो। यहाँ पे टी साइलेंट है। अब जब ये इंडिया में आती है तो सबसे पहले ये आती है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। फिर ये जाती है आसाम में, और फिर ये जाती है बांग्लादेश में, जहाँ ये वर्ल्ड का गंगा के साथ मिलके, जो गंगा रिवर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है, जो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। यहीं पे आपको सुंदरी ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। यहीं पे ब्रह्मपुत्र पे जो रिवर है, वहाँ आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड देखने मिलता है, माजुली आइलैंड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये वर्ल्ड के हैं। अब यहाँ क्या कोई सिटी भी लोकेटेड है, तो हाँ, यहाँ पे एक सिटी भी सिचुएटेड या लोकेटेड मिलेगी आपको, तो वो है गुवाहाटी। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछी जाएं तो वो हैं तिस्ता, सुबनसिरी और लोहित। तिस्ता इंपॉर्टेंट बनती है और आपसे पूछा जा सकता है कि जो तिस्ता रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये होता है जेमू ग्लेशियर, और ये आपको डिस्प्यूटेड मिलेगी बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। जब ये इंडिया में आती है तो ये सबसे पहले आती है सिक्किम में, फिर ये जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में ये एक बॉर्डर फॉर्म करती है, फिर ये जाती है बांग्लादेश में, जो डिस्प्यूटेड हो जाती है फिर बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आप अपने माइंड में रखेंगे। अब जो इसकी ट्रिब्यूटरी है लोहित, यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट ब्रिज देखने को मिलता है। ब्रिज है ये लॉन्गेस्ट, कौन सा, ढोला सदिया या भूपेन हजारिका, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में इंडिया का लॉन्गेस्ट रोप वे कहाँ पे बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, जगह कौन सी है, गुवाहाटी। तो ये भी आपसे एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। और जो थर्ड यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो है बोगीबिल ब्रिज, जो लॉन्गेस्ट है। ये भी लॉन्गेस्ट था, ये भी लॉन्गेस्ट है, बट ये रेलवे कम ब्रिज है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो भूपेन हजारिका मार्क करके आएंगे, लॉन्गेस्ट लिखा और साथ में लिखा और रेलवे कम ब्रिज, तो आप मार्क करके आएंगे बोगीबिल ब्रिज। नेशनल पार्क, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है, 1 हॉर्न राइनो। और ये अभी हाल ही में यहाँ पे आपको गोल्डन टाइगर्स भी देखने को मिले हैं। अब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है। अब यहाँ से हम यूनेस्को का जो थोड़ा बहुत स्टैटिक है वो देख लेते हैं। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलता है पेरिस में, जो किसकी कैपिटल है, फ्रांस की। इंडिया में कितनी साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में आती हैं, वो है 38 साइट। उसमें जो मिक्स्ड वाली है एक, वो कौन सी है, वो है कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में देखने को मिलती है। और अभी हाल ही में जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जितनी 38 ये जो हेरिटेज साइट हैं इंडिया में यूनेस्को की जो लिस्ट में आती है, उनके ऊपर ना एक जो पोस्टेज स्टैंप्स होते हैं ना, उनकी वो जारी किए जाएंगे। अब आप पूछेंगे मैम ये पोस्टेज स्टैंप क्या होते हैं, तो पहले जब हम लेटर्स लिखा करते थे जो उसके ऊपर एक छोटी छोटी टिकट्स होती थी ना, कुछ उसी फॉर्म में उसको वो कहा जाता है, जो पोस्टेज स्टैंप्स होते हैं वो वाले। अब जो सेकेंड यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है वो है दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। अभी हाल ही में यहाँ पे ये जो नेशनल पार्क है दिब्रू शिखोवा, यहाँ इसी के पास आपको एक तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जहाँ अभी हाल ही में ऑयल स्पिल हुआ था आसाम में, जहाँ पे एक नेचुरल गैस लीक हो गई थी और काफ़ी लोग जो है वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हो गई थी। अब यहाँ पे है मानस नेशनल पार्क, ये भी आपको यूनेस्को की लिस्ट में देखने मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट नमेरी नेशनल पार्क है जो एलिफेंट के लिए फेमस है। अब एलिफेंट के लिए अगर आपसे डे पूछा जाए तो वो सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त को। इसके लिए रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर पूछा जाए इंडिया में कहाँ है, तो वो है केरला में। हॉस्पिटल पूछा जाए या म्यूज़ियम पूछा जाए तो वो आप मथुरा मार्क करके आएंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और है जो है राजीव गांधी या ओरांग नेशनल पार्क, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 2020 में ही अभी हाल ही में एक नया यहाँ पे नेशनल पार्क बनाया गया है, मतलब जो ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी लेकिन अब इसे एज अ नेशनल पार्क कंसीडर किया जाता है, वो कौन सी है, धियांग पटकाई। लेकिन अगर आपसे हिल्स और माउंटेन पूछी जाए कि पटकाई की हिल्स या माउंटेन कहाँ है, तो आप मार्क करके आएंगे, ये आपको मिलेगी नागालैंड एंड मिजोरम में।
अब आप बोलेंगे मैम इतने सारे हम कैसे याद करें नेशनल पार्क, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी रखी है। मानस और नमेरी ने आसाम के दिब्रू साई शॉप के काजिर से ऑरेंज लिए और वहीं पटक दिए। तो मानस से मानस नेशनल पार्क, नमेरी से नमेरी, दिब्रू साई से दिब्रू शिखोवा, काजिर से काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑरेंजेस से राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और पटक से पटकाई नेशनल पार्क। तो ये आप अपने माइंड में ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ लैंग्वेजेस पूछी जाएंगी तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो है आसामीज़ और बंगाली। बोडो लैंग्वेज भी यहाँ बोली जाती है और बोडो की यहाँ आपको एक ट्राइब्स भी देखने मिलती हैं और लैंड भी है यहाँ पे एक बोडो लैंड। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट टेम्पल आपसे पूछा जा सकता है वो है कामाख्या टेम्पल। अगर डीप क्वेश्चन गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कामाख्या टेम्पल कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है या सिचुएटेड है, तो नीलाचल हिल्स हैं, उसके ऊपर आपको कामाख्या टेम्पल देखने को मिलता है। अब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपसे पूछी जा सकती हैं वो है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुरा छुपोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो वेटलैंड यहाँ से पूछे जाएंगे वो हैं मुगरी, मोटा, पुंग, भील वाइल्ड लाइफ वेटलैंड। और यहाँ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड जिसे ओल्डेस्ट भी कहते हैं इंडिया की, वो है दिग्बोई। एशिया की लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट जगी रोड आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, आसाम में। अभी इंडिया में फर्स्ट बन गया ये, जो रोबोट की हेल्प से जो मैन होल्स होते हैं, जो गटर वगैरह होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है आसाम में, और उस रोबोट का नाम क्या है, बंदी कूट। तो ये भी आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अभी हाल ही में यहाँ पे एक स्किल यूनिवर्सिटी खोली गई है, आसाम के लिए भी है और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ के लिए भी है। आसाम की जो लोग हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, बट जो आसपास के जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं उसके, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और अभी हाल ही में यहाँ पे एक डीडी आसाम करके न्यूज़पेपर की शुरुआत भी की गई है। अब आपसे पूछा जाए कि एशिया का ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर वो आपको आसाम में देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, रंगघर। इंडिया का फर्स्ट 5 स्टार रिवर क्रूज़ क्या नाम है जिसका, MV महाबाहु, वो भी आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कहाँ देखने मिलता है, आसाम में। अब जो चीज़ें जहाँ पे इसको इनकी जो आसाम है जिसकी GI दिया हुआ है, जहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वो है मुगा सिल्क, तेजपुर की इलायची और जोहा राइस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो रिपीट भी हुए हैं कई बार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अब एक नई स्टेट के साथ।